I was talking to you about the locals, how they are feeling about the Prime Minister's visit. This is, as you said, the maiden visit after the Prime Minister won the elections. Right. Now, ND, there seems to be a connection problem there. We'll get back to ND Prasad, where there you can see live visuals of the Prime Minister at the Avadhut Datta Peetham in Mysore, where he will be inaugurating a new hospital there. In fact, announcement of the new hospital will be done in a short while. This is the Prime Minister's maiden visit to Karnataka. And he is on a 2-day visit to Karnataka, where today he will be inaugurating a new hospital and also be attending the birth centenary celebrations of Dr. Mahaswamiji in Mysore. Jai Guru Datta. I seek the blessings and permission of Parama Pujya Sri Swamiji to begin the proceedings. Ladies and gentlemen, just as millions of devotees deem it to be their great fortune to have Parama Pujya Sri Swamiji as their Sadguru to light up their spiritual lives, the nation today is indeed fortunate to have a great visionary, Adaraniya Shri Narendra Modi ji, as the Prime Minister to lead our great country towards even greater prosperity and glory. On behalf of all the devotees of Datta Peetham, I extend a warm and hearty welcome to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I also welcome His Excellency Shri Vajubhai Rudabhai Walaji, the Honorable Governor of Karnataka, to Datta Peetham. I heartily welcome all the dignitaries who are here today. May I now request the Honorable Prime Minister to offer a garland to Parama Pujya Sri Swamiji on this wonderful occasion.
beseech His Holiness Parama Pujya Sri Swamiji to bless the Honorable Prime Minister by conferring Peetham honors. I now request Pujya Shri Datta Vijayananda Tirtha Swamiji to bless His Excellency the Governor with Peetham honors. His Holiness Datta Peethadipati Jagadguru Parama Pujya Shri Shri Ganapati Sachidananda Swamiji to bless us with his divine words. Shri Mahaganapate Namaha, Shri Saraswati Namaha, Shri Pada Vallabha, Narasimha Saraswati, Shri Guru Dattatreya Namaha. आज का दिन बहुत सौभाग्य का दिन है। आज प्रधान अनगाष्टमी का दिन है। प्रधान अनगाष्टमी व्रत पुरातन से दत्त का व्रत सब लोग दत्त भक्त लोग आचरण करता है। आज का दिन बहुत संतोषदायक। हमारा नेता भारत निधि आज हमारा दत्तपीठ में वो स्वागत किया है, आया है। बहुत संतोषदायक है और देश विदेश में इनका कीर्ति हमारा भारत भूमि का बड़ा भारत भूमि का कीर्ति देश विदेश में प्रचार हुआ है। ऐसा हमारा नेता हमको मिला है। वो दत्त भगवान दिया है एक हमारा लिए एक बहुमान है। इसलिए आज से इनका यात्रा दत्तपीठ से प्रारंभ हुआ है। उनका कौन मेरा स्वप्न 10 वर्ष से मेरा स्वप्न था कि हमारा नेता होना है। ऐसा प्रकार भारत भाग्यशाली और भारत प्रज भाग्यशाली है। आज का दिन में क्या बोलना है। आई हैव नो वर्ड्स टू गिव दिस कनेक्शन। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत संतोष है। इनका क्या क्या संकल्प किया है, ऐसा संकल्प पूरा होने के लिए भगवान का मैं प्रार्थना करती है। हमेशा मैं प्रार्थना करूँगा इनके लिए अच्छी तरह भारत और संविधान और अच्छी सारा रंग पर इनका प्रभावित होना, सारा रंग पर सुधारण होना, ऐसा शक्ति युक्ति सब बल सब देना है दत्त भगवान। ऐसा प्रकार आशीर्वाद करके इनका नरेंद्र मोदी में भी नाम भी है। ऐसा जय है। ऐसा प्रकार इनका कीर्ति बढ़ना है। जय गुरुदत्ता, श्री गुरुदत्ता। Reverential pranams to Parama Pujya Sri Swamiji for blessing us with his benedictory address. As Datta devotees are aware, the year 2016 happens to be the 50th year of Datta Peetham. The Golden Jubilee celebrations will begin sometime in June, and today's function marks an auspicious beginning to our Golden Jubilee year. We thank the Honorable and beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji for visiting Datta Peetham today, and I request him to address this august gathering. परम पूज्य स्वामी गणपति सच्चिदानंद स्वामी जी, श्रीमान दत्ता विजयानंद तीर्थ स्वामी जी,
कर्नाटक के गवर्नर श्रीमान वजुभाई, गुरुदेव दत्त, दत्तपीठ में मैं पहली बार आया हूं, लेकिन इस परंपरा से मैं काफी सालों से जुड़ा हुआ हूं। जो भी नर्मदा तट पर अपना समय बिताते हैं, तो नर्मदा तट पर अगर किसी को साधना करने का अवसर मिलता है तो गुरुदेव दत्त के बिना न वो साधना आरंभ होती है, न वो साधना की पूर्णा होती है। चाहे आप नारेश्वर जाएं, चाहे आप गुरुदेश्वर जाएं, दत्त कृपा से ही उस पूरा क्षेत्र प्रभावित है। और पूरी नर्मदा की साधना जो है, जो नर्मदा के साधक होते हैं, जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, वे सुबह शाम दो ही मंत्र बोलते हैं, नर्मदे हर और गुरुदेव दत्त। यही जो मंत्र होते हैं जो पूरी साधना का हिस्सा होते हैं। मुझे खुशी हुई कि पिछले सप्ताह गुरुजी गुजरात होकर के आए, कच्छ के रेगिस्तान में होकर के आए, रणोत्सव को देखा, लेकिन सबसे बड़ी बात है वहां पर काला डूंगर पर गुरुदेव दत्त का जन्म तीर्थ स्थान है और गुरुदेव दत्त की जयंती पर वहां एक बहुत बड़ा समारोह होता है। हिंदुस्तान का वो आखिरी स्थान है, उसके बाद रेगिस्तान और रेगिस्तान के उस पार पाकिस्तान, उस स्थान पर गुरुदेव दत्त का स्थान है। और अभी अभी दत्त जयंती गई तो उस दत्त जयंती को मनाने के लिए गुरुदेव वहां गए थे और बड़ी प्रसन्नता मुझे अभी व्यक्त कर रहे थे। मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे दत्तपीठ में आने का अवसर मिला। इस परंपरा ने जो सामाजिक काम तो यही है, लेकिन हमारे देश में संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो भी होता है वो समाज हित में ही होता है, समाज के लिए होता है, समाज के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन उसकी पहचान नहीं होती, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरे कर्तव्य का हिस्सा है, इसलिए वो कभी ढोल नहीं पीटते। और उसके कारण दुनिया में एक छवि है कि भारत के संत महंत, साधु महात्मा, या ना उनका मठ मंदिर और उनका पूजा पाठ और उसी में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारे देश में सारी ऋषि परंपरा, संत परंपरा, वे समाज उद्धार के लिए लगी हुई है, समाज सेवा में लगी हुई है। पूज्य स्वामी जी के जितने प्रकल्प है, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा का हो, या पंखियों की चेतना को समझने का प्रयास हो, या उनकी नाद ब्रह्म की उपासना हो। नाद ब्रह्म की उपासना अप्रतिम मानी जाती है। नाद ब्रह्म के सामर्थ्य को हमारी परंपराओं ने स्वीकार किया है, और इसलिए और बहुत कम लोग होते हैं जो नाद ब्रह्म की उपासना कर पाते हैं। ब्रह्म का ये रूप जिसको फील किया जा सकता है, बाकी ब्रह्म के रूप को फील नहीं किया पाता है। नाद ब्रह्म है जो उस ब्रह्म के रूप को हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और उसकी साधना के द्वारा सामान्य जन को ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए नाद का माध्यम ये स्वामी जी ने करके दिखाया है। और विश्व के बहुत बड़े फलक पर हमारी इस महान परंपरा को फ्रॉम नोन टू अननोन, क्योंकि सामान्य मानवी गीत और संगीत को जानता है, लेकिन उसके आध्यात्मिक रूप को जानना और उसको ब्रह्म से जोड़ना एक अविरत काम जो स्वामी जी के द्वारा हुआ है, विश्व के अनेक स्थानों पर हुआ है। मुझे भी ऐसे कुछ स्थानों पर जाने का अवसर मिला है,
लेकिन मूल स्थान पर जाने का आज पहली बार अवसर मिला है। तो मेरे लिए सौभाग्य है, मैं खुद स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और उनकी समाज सेवा की जो कामगिरी है, जो काम चल रहा है, उसको भगवान दत्त के आशीर्वाद मिलते रहे और गरीब से गरीब, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की सेवा में ये शक्ति काम है। यही मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव दत्त। We are highly grateful to the Honorable Prime Minister for his wonderful speech. With this, we have come to the end of this wonderful but really short evening function. I request everyone to remain seated as the dignitaries leave. We extend our heartfelt thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister, His Excellency the Governor, and all the dignitaries for having graced this wonderful occasion. Jai Guru Datta. So there you saw Prime Minister Narendra Modi on his maiden visit to Karnataka, where he announced the inauguration of the new hospital at Avadhut Datta Peetham in Mysore. And he addressed the gathering there, and he said that it is his first visit to Datta Peetham, but he is familiar with the rich traditions of the organization, and he feels fortunate to have visited it today. He also said that the social work being done by Datta Peetham, he's very thankful for that, and very few people like the Swamiji there can experience the devotion towards Nag Brahma. And there you can see Prime Minister Narendra Modi leaving the premises of Avadhut Datta Peetham. He's on a 2-day visit to Karnataka. Well, that's it in this edition of the news. The news and updates continue on the other side. Stay tuned. Namaskar.